Today we are going to discuss very important topic in organic chemistry. Why I am telling you? Previous year last 10 years paper you can look at. Most of the questions are from GOC. GOC is meant for all organic named reactions and organic reagents. Now today we are going to discuss all organic reagents which are given in NCERT textbook. Chapter wise one by one we are going to discuss. देखो first in alkane chapter में first one is a zinc dil HCl. This reagent is given. We can also open NCERT textbook. This is a reducing agent which can reduce alkyl halides into alkanes. Very simple funda. Reducing agents which can reduce alkyl halides into corresponding alkanes. This is NCERT textbook. This is given reducing agent. Other than this, we can also use it. Zinc copper couple in ethyl alcohol. Other end, instead of Zn dil HCl, we can also use it zinc copper couple in ethyl alcohol. This is also reducing agent. We can also use this conversion. Lithium aluminum hydride also used for this conversion. Sodium borohydride can also use this for conversion. But some limitations are there. Lithium aluminum hydride only convert primary, secondary alkyl halides into alkanes. Tertiary alkyl के लिए alkenes है. Limitation क्या है? Limitation है. देखो in limitation है. Lithium aluminum hydride है. Primary and secondary alkyl halides converted into alkenes. Whereas tertiary alkyl halides are converted into alkenes. In case of lithium aluminum hydride. But in case of sodium borohydride primary secondary के लिए no reaction है. देखो in case of sodium borohydride है primary secondary के लिए no reaction है. Primary and secondary के लिए no reaction है. But in case of tertiary alkyl halides it converted into alkanes. But in NCERT textbook they given only this is a reducing agent. NCERT में this is only reducing agent which convert alkyl halides into alkanes. But apart from we can also use these are reducing agent. Zinc copper couple ethyl alcohol. Lithium aluminum hydride, sodium borohydride. We already know that lithium aluminum hydride can reduce primary secondary into alkanes. In case of tertiary के लिए alkene. In case of Wurtz reaction also same. Tertiary के लिए alkane है major compound. Sodium borohydride के लिए ER. नोट करो ये important है which are given NCERT textbook. Alkane के लिए first reducing agent. Means reagent they may ask the questions. Very important है first zinc and dil HCl is given. Right? In that you may also use this as a reducing agent. This is the first one. Shall I go to next? This is the first reducing agent. देखो next one. I think we already made one video regarding to soda lime decarboxylation reaction है. For your kind information, soda lime में क्या reaction है? Is also preparation of alkanes only. Just salts of sodium salts, potassium salts you take like RCOONA in the brains of NaOH and CaO. I am not going for mechanism over here because NEET examinations say most of them they are asking the question for only reagents and reactions only. आपको बनता है क्या है? आपको बनता है क्या है? Na2CO3 plus RH. alkanes हैं plus Na2CO3. For your kind information here, I think we already discussed the mechanism. In the mechanism,
Intermediate compounds are कौन है? Carbanions are formed. In decarboxylation reaction, carbanion is formed. This is called soda lime बोलते हैं. NaOH CaO. What is CaO? Is a drying agent. Yes, CO is called drying agent. अच्छा, this is a degradation reaction. For example, CH3 COO Na in the presence of soda lime NaOH CaO. अच्छा, C6H5 COO Na. अच्छा, NaOH and CaO. अच्छा देखो ये नंबर ऑफ कार्बन्स देखो, number of carbons are 2 carbons है, but alkane obtain only containing 1 carbon. One degradation reactions है. अच्छा ये number of carbon count करो 7 carbon है, but this is nothing but benzene है, which is containing 6 carbon है. अच्छा decarboxyl reaction में आपका preparation methods of alkane है, preparation methods of benzene also covered. अच्छा reagent is very important है, soda lime है, NaOH decarboxylation. Of course in carboxylic compounds में decarboxylation we discuss beta keto acid, beta gamma unsaturated acids, geminal dicarboxylic acids undergoes decarboxylation very easily. But in alkane chapter में decarboxylation का reaction क्या है, reagent क्या है, what is the reagent? NaOH and CaO. अच्छा ये भी add करो, in this reaction है carbanion is formed. Stability of carbanion we know primary greater than secondary greater than tertiary carbanion. This is the reagent. Next one more reagent. I think you understand. Shall I go for next reagent? Shall I? Next reagent. अच्छा देखो यहाँ complete oxidation means combustion reaction. Alkane complete oxidation gives CO2 plus H2. But control है, control oxidation है. अच्छा control oxidation में आप देख लीजिए copper in the presence of copper it gives a methyl alcohol. अच्छा these are which are given NCERT textbook only. Control oxidation. अच्छा molybdenum oxide है we give formaldehyde है. Manganese acetate है we give acetic acid है. अच्छा generally यहाँ देखो if alkane containing tertiary hydrogens है, otherwise alkanes are inert for oxidation. अच्छा when these reactions are occur when alkanes containing tertiary hydrogens, then only it undergoes oxidation, it gives corresponding alcohols, tertiary alcohols form. Tertiary alcohols are formed. We know alkane itself is called paraffins, little affinity, less reactivity, inert for oxidation. But in which special condition में it undergoes oxidation. This special condition में it undergoes oxidation. It gives tertiary alcohols. अच्छा, I am not explaining you outside NCERT. What are given NCERT reagent? I am explaining those NCERT reagents only. Right. And next, I think 2020 NEET examination में these questions are asked might be. अच्छा, this is called question number 5. This is called isomerization बोलते हैं. Isomerization बोलते हैं. Conversion of one isomer into another isomer. This is nothing but N-hexane है. N-hexane में 2-methyl pentane है, 3-methyl pentane. अच्छा, this is a given NCERT textbook है. अच्छा, better example I am telling you, best example I am telling you. अच्छा, N-butane लिया मैंने, CH3, CH2, CH3, N-butane लिया. In the presence of this reagent है, anhydrous aluminum chloride HCl है. अच्छा, we get isobutane. अच्छा, conversion of N-pentane to isopentane, N-hexane to isohexane, मतलब there are possibility there. 2-methyl pentane also, 3-methyl pentane also possibility there, which are given NCERT textbook. Isomerization है. Generally in petroleum chemistry में, petroleum refining में, in order to decrease the knocking property of the alkanes है, we are using isomerization technique. Because branch compounds में less knocking है and aromatic compound में less knocking है. That's the reason why conversion of N compound into iso compounds है, neo compounds है. Similarly, this is called aromatization है. Might be I think 2020 NEET examination question number 6 they asked. अच्छा, this is the question asked है. 2020 NEET exam में this is the question asked है. This is called
aromatization only. Aromatization reaction, conversion of NHN into benzene. अच्छा reagent I think they asked that. अच्छा ఇక్కడ Cr2O3, V2O5, like molybdenum MO2O3, Al2O3. These are reagent. I think NEET 2020 NEET examination में this question is asked that. Aromatization question है. अच्छा देखो completely from NCERT textbook only they are asking the reagents. They are not asking outside the reagents. Completely NCERT textbook से पूछ रहा है. अच्छा reagent asked only. Cr2O3 गाने, V2O5 गाने, molybdenum oxide गाने, Al2O3 गाने. अच्छा these two techniques are they are using petrochemical industry in order to decrease the knocking property of the alkanes. Straight chain compound more knocking property because more surface area. Like that's why converted into either iso compound like branch compound or aromatic compounds. अच्छा suppose instead of NHN है N-octane दिया टोलिन बनता है. N-octane दिया maybe xylene बनता है, maybe ethyl benzene also. अच्छा aromatic बनता है definitely. It becomes aromatic compound. Conversion of aliphatic into aromatic is called aromatization. Conversion of side chain compound into branch chain compound is called isomerization techniques. So these are the which are given. And अच्छा alkane में यही reagents है. Of course, Clemmensen reduction will be discussed later on. Later chapters में आता है. But these are the major reagents which are we are going to discuss in particularly alkane chapter. Okay. Now move to the next. अच्छा alkene में देखो alkene में alkali KOH and sodamide है. अच्छा these are nothing but dehydrohalogenation reagents only. These are nothing but dehydrohalogenation reaction है. Dehydrohalogenation reactions है. अच्छा removal of hydrogen as well as halogen only. Alkali KOH and sodamide. अच्छा देखो एक एग्जांपल देखो आपके लिए. एक एग्जांपल देखो आपके लिए. अच्छा you take a viginal dihalide है. Viginal dihalides है. अच्छा alkali KOH है. अच्छा alkali KOH you go for beta elimination reactions है. These are the beta elimination reactions है. अच्छा this suppose alpha position, this is beta position. Suppose first remove hydrogen from beta carbon and Br and alpha carbon. अच्छा first compound क्या बनता है? CHBr double bond CH. अच्छा now you can go for sodamide. Now you go for sodamide. Sodamide NaNH. Now again alpha beta. Alpha beta, right? If you go for alpha beta, then क्या होगा alpha beta में beta position में hydrogen, alpha position में Br. अच्छा क्या बनता है? इसलिए बनता है. This is the one. अच्छा दूसरा देखो मैंने viginal dialysis लिया. Viginal dialysis लिया, alkynes बनेगा. Alkynes है, इसलिए नहीं. अच्छा instead of alkali KOH directly I can use directly I can get ethylene molecule. Instead of this one, अच्छा directly I can use sodamide है. अच्छा directly ethylene बनेगा. Directly ethylene बनेगा. Right? अच्छा देखो one more example है. अच्छा this time मैंने दिया just alkyl halides. अच्छा alkali KOH. Alkali KOH. Previously viginal dihalide लिया. Now only alkyl halide लिया. Now देखो this is alpha carbon, this is beta carbon. Beta elimination. Hydrogen atom is eliminated from beta carbon, halogen from alpha carbon. Remove the 1HBr. अच्छा alkene बनता है. अच्छा preparation of alkene also, preparation of alkane also. This reagent is used है. Alkalic whenever alkali KOH है, this elimination you remember है. Alkali KOH के लिए elimination reactions है. Aqueous KOH के लिए substitution reactions. So alkali KOH का मतलब either formation of alkenes है या formation of alkanes.
which are given NCERT textbook है, reagent है, alkalic KOH soda amide है, right? Now देखो next. अच्छा కాన్సంట్రేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గాని NHS ZnCl2 గాని Al2O3 గాని what is the function? Dehydration. This is also elimination reaction. Dehydration reaction. अच्छा देखो this is nothing but dehydration reactions है. This is dehydrating reagents है. Dehydrating reagents है. अच्छा we already discussed this mechanism. Now I am not going for mechanism over here only. अच्छा simple है, what are NCERT textbook में दिया, we are going to discuss that only. सल्फ्यूरिक एसिड है. अच्छा फॉर एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर. सपोज आई गो फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल है. देखो विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल है. अच्छा इथाइल अल्कोहल concentrated sulfuric acid at about 170 degrees Celsius, or alumina at about low high temperature में 350 360. अच्छा alkene बनता है again beta, this is also go for beta elimination reactions. अच्छा this is also beta elimination में देखो अल्फा beta elimination है. बीटा एलिमिनेशन में क्या बनते हैं? अल्कीन बनते हैं, अल्कीन बनता है. अच्छा ऑल आर में सेम फंक्शंस होंगे. अलुमिना, NH, ZnCl2, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होंगे. अच्छा दिस इंट्रामॉलिक्यूलर. सपोज इंटरमॉलिक्यूलर के लिए मैंने सपोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लिया, लो टेम्परेचर है. सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, अच्छा लो टेम्परेचर है अबाउट 140 है. अच्छा अलुमिना आल्सो लो टेम्परेचर है, वी टेक 250 to 260 है. बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर. अच्छा हियर आल्सो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट इधर बनते हैं C2H5O C2H5. अच्छा देखो अल्कीन चैप्टर में दे आस्क कांसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, NH ZnCl है, अलुमिना डिहाइड्रेशन है. फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आस्क द क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल्स. अच्छा इन केस ऑफ दिस इज पॉसिबल, इंटरमॉलिक्यूलर पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है. सेकेंडरी टर्शियरी के लिए इजीली इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन है, हाई टेंपरेचर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड ओनली. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आल्सो दे में आस्क द क्वेश्चंस है. इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दे आस्क द क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. देखो कितना इजी डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन बनता है. इजी डिहाइड्रेशन कितना होता है? टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल. इजी डिहाइड्रेशन है. अच्छा डिहाइड्रेशन का रिएजेंट है. सपोज दे आर आस्किंग द रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली. टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल ओनली. दिस इज अ कांस्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, NH ZnCl2 एंड अलुमिना, राइट. चलो नेक्स्ट. अच्छा दिल सल्फ्यूरिक एसिड है. अच्छा दिल सल्फ्यूरिक एसिड इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बनता है, फॉलोस मार्कोनिकॉफ रूल है. अच्छा देखो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स है, दिस इज नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स है. अच्छा फॉलोस मार्कोनिकॉफ रूल है, फॉलोस मार्कोनिकॉफ रूल है. अच्छा वी नो मार्कोनिकॉफ रूल में, अच्छा आई एम नॉट डिस्कसिंग मैकेनिज्म ओवर हियर, सिंपली यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल में प्राइमरी स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. व्हेन देयर इज अ कार्बोकैटायन देयर इज चांस फॉर रीअरेंजमेंट, बट विदाउट रीअरेंजमेंट सिंपली आई एम टेलिंग दैट because which are given NCERT textbook है, NCERT textbook है. देखो CH3 CH2 सॉरी CH double bond CH2.
प्रोपीन है। अच्छा मैंने दिल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। अच्छा आपको मालूम है दिल में क्या होता है, पानी होता है। अच्छा पानी मीन्स डोंट स्प्लिट लाइक दैट, बट फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग वाटर मॉलिक्यूल तो कैसा। Now apply Marconi rule है, negative part of the reagent added to double bond carbon with less number of hydrogens only। मतलब आपको यहाँ मिलेगा CH3, CHOH and CH। जनरली हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमको सेकेंडरी टेरिशियरी अल्कोहल बनता है। अच्छा मेजर प्रोडक्ट्स आर हियर, मेजर प्रोडक्ट्स आर जनरली मेजर प्रोडक्ट्स आर सेकेंडरी और टेरिशियरी अल्कोहल्स। अच्छा मार्क एंटी मार्कोनिक रूल में प्राइमरी अल्कोहल्स और मेजर प्रोडक्ट्स। अच्छा व्हाई आई रोट टेरिशियरी मींस इज देयर एनी चांस फॉर माइग्रेशन 1 to हाइड्रेट 1 to मिथाइल शिफ्ट है, इन दोस केसेस टेरिशियरी बनता है। बट एनसीआर टेक्स्ट बुक में गिवन सिंपल एग्जांपल है। अच्छा रिएजेंट का सिंपल एग्जांपल है एनसीआर टेक्स्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो ये वाला, दिस इज माना एसिडिक KMnO फॉर अंटर or potassium dichromate or a hot KMnO for hot potassium dichromate। अच्छा how this is whenever this system है, this kind of system है, अच्छा whenever this kind of system है converted into CO2 plus H2O। अच्छा alkene of this system है converted into RCOH। अच्छा whenever this system है converted into ketone है, ketone है। अच्छा एक ऊपर सिंपल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल फॉर दिस अच्छा ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और एग्जांपल है CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड CH3। now what are the products formed है, can you tell that what are the products formed है? अच्छा what are the products formed हो रही है। अच्छा देखो ये सिस्टम में क्या बनते हैं CO2 plus H2। अच्छा ये सिस्टम में क्या बनता है RCOH, मतलब 2 कार्बन एसिड है CH3COH, ये खत्म हो गया। अच्छा देखो ये सिस्टम में क्या बनता है कीटोन है। अच्छा कीटोन क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अच्छा ये सिस्टम में क्या बनता है एसिडोन। अच्छा मतलब CH3 COH। अच्छा this kind of systems are given, आप easily you can write it, right। चलो next। नेक्स्ट वोज एनालिसिस है, अल्कीन चैप्टर वोज एनालिसिस है, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल फंडा वोज एनालिसिस में। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव वोज एनालिसिस है। अच्छा रिडक्टिव वोज एनालिसिस में दिस कॉल्ड रिडक्टिव वोज एनालिसिस है। अच्छा वोज एनालिसिस डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड्स है जनरली। अच्छा जनरली कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं रिडक्शन ऑफ, ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, मोस्ट रिडक्टिव एनालिसिस आर गिवन इन सिलेबस है। अच्छा ये वाला बहुत आसान था ये वाला। कैसा है देखो whenever CH2 डबल बॉन्ड CH2 गिवन। अच्छा आप ये काम करना, हमारा काम वेरी सिंपल था, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, पुट ऑक्सीजन बोथ साइड है। अच्छा 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड है, वेरी सिंपल बनना। अच्छा देखो एक और एग्जांपल दिया आपको, एक और एग्जांपल दिया। अच्छा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 दिया। अच्छा अब काम करो, एक काम करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, पुट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर। अच्छा वेरी सिंपल बनना। सपोज ऐसा कंपाउंड दिया अल्कीन आपको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां भी क्लीवेज करो, पुट ऑक्सीजन ओवर हियर एंड ऑक्सीजन ओवर। within the same compound 2 carbonyl compounds within the same compound there is CHO ना, अल्कीन में भी हो सकता है, अल्काइन में भी हो सकता है।
ओजमोसिस रिएक्शंस है अल्कीन में भी अल्काइन में भी. अच्छा, मोस्टली दे विल आस्क द क्वेश्चन फॉर अल्कीन and ओजमोसिस रिएक्शंस, right? Osmosis reactions also which are given NCERT textbook है, that's why the two given more priority in alkene chapter, alkenes, right? देखो ये वाला. अच्छा देखो alkynes में very important reagent is nothing but 40% sulfuric acid है, 1% HGSO. This is called hydration of alkynes है. This is nothing but hydration of alkenes है. Nothing but hydration of हाँ, hydration of alkenes, hydration of alkynes है. Hydration of alkynes है, hydration of alkynes है. So hydration of alkynes में just we go for it. अच्छा, most of the previously asked JEE का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, most of the reactions. Here 40% sulfuric acid nothing but Dil H2SO4 is a catalyst है, 1% HSO4 is a promoter. Heavy metal ion generally, addition reaction में heavy metal ions होता है. Heavy metal ions होता है. देखो कैसा बनता है. ये वाला. अच्छा, whenever this reagent is given ना, मतलब आपको याद करना हाइड्रेशन का मतलब दिल सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, दिल में क्या होता है? H+OH- होता है. दिल में क्या होता है? H+OH- होता है. अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल. अच्छा देखो, ये कार्बन में OH ऐड करो, एक कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करो. अच्छा, आपको बनता है विनाइल अल्कोहल है. विनाइल अल्कोहल है, which is a vinyl alcohol which is unstable compound है. Is enol form है. enol form है. enol form is unstable है. Convert into keto form है. keto form is acetaldehyde बनता है. acetaldehyde बनता है. चलो आपके लिए एक और एग्जांपल है, ये वाला, बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स है. एक और एग्जांपल देखते हैं. एक और एग्जांपल देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH. अच्छा, whenever Dil H+O4 add H+OH- according to Markovnikov rule. अच्छा, यहाँ से मैंने H+OH- को according to Markovnikov rule I am going to add it. अच्छा, negative part is added to triple bond, double bond with less number of hydrogens. अच्छा, less number of hydrogen add చేద్దాం. We can add less number of hydrogen है, CH3 COH double bond CH2. अच्छा देखो, ये enol form है, double bond en है, OH ol है, enol form है. enol form aldehyde में कन्वर्ट करो, एस्टोन बनता है ये वाला. अच्छा, आपको याद है कैसा कन्वर्शन कैसा याद है? अच्छा देखो, हाइड्रोजन 1 2 3 डबल बॉन्ड मैग्नेट, हाइड्रोजन माइग्रेट टू थर्ड हेटेरोएटम है, डबल बॉन्ड इज माइग्रेटेड. दैट इज कॉल्ड फिनाइल एस्टिलीन बोलते हैं. फिनाइल एस्टिलीन है. अच्छा, सेम ऐड करो आप, H+OH- ऐड करो, H+OH- ऐड करो सिमिलरली. अच्छा, C6H5 COH डबल बॉन्ड CH. दिस आल्सो enol फॉर्म है, अनस्टेबल है. अच्छा, enol फॉर्म में कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करो, अच्छा देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड माइग्रेट हो गए, नथिंग बट H2 फिनोल बनते हैं ना. अच्छा, why I am telling different applications? These are the previously asked most questions from alkynes. Alkyne flow, most important questions are from this one, right? अच्छा, hydration of alkenes are important, hydration of alkynes also important, but reagent different होता है. In case of alkyne के लिए heavy metal ion is required, catalyst promoter is required, because alkenes are more reactive than alkynes only. Alkyne के लिए heavy metal ion is required only. Alkene के लिए requirement नहीं है. Directly we are using Dil sulfuric acid. So ये Dil sulfuric acid के साथ क्या यूज करना? mercury का ion, heavy metal ions यूज करना in case of alkynes. यही फंडा है, remaining same. Alright, shall I go for this?
नेक्स्ट ये वाला बोलता है टॉलिंस रिएजेंट है। अच्छा देखो टॉलिंस रिएजेंट है। अच्छा स्पेशली दिस टू टेस्ट फॉर एसिडिक नेचर ऑफ एसिलिन, terminal difference between terminal alkynes and non-terminal alkynes के लिए these two tests are based on mainly terminal alkyne, non-terminal alkyne. Means if any like we are discussing alkyne side, alkyne having acidic hydrogen side, this is called Tollens test बोलते हैं, Tollens reagent बोलते हैं. Ammonical silver nitrate called Tollens reagent है. Ammonical silver nitrate is nothing but Tollens reagent है. अच्छा Tollens reagent है. अच्छा सपोज एसिडिक हाइड्रोजन है. अच्छा एक और एग्जांपल है आपके लिए, एक और एग्जांपल है. एक और एग्जांपल है. अच्छा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. अच्छा एक और एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. देखो इन थर्ड एग्जांपल में देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन. थर्ड एग्जांपल में नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन है. अच्छा रिएक्शन नहीं बनता है टॉलिंस स्टेज. अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में सिल्वर मिरर है. फर्स्ट इक्वेशन में क्या बनता है AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg, इसका सिल्वर मिरर है, इसका सिल्वर मिरर है. अच्छा सेकंड इक्वेशन में भी बनता है, सेकंड इक्वेशन में बनता है कैसा. अच्छा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAg, दिस आल्सो सिल्वर मिरर है. अच्छा थर्ड इक्वेशन में नो एसिडिक हाइड्रोजन है. टेस्ट फॉर मींस difference between terminal alkyne, not this is not terminal alkyne because alkyne position function will be second position, a first position में 1 बट यहाँ देखो 2 नॉन टर्मिनल है. नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए रिएक्शन नहीं है. अच्छा दिस इज नॉट फेलिंग सॉल्यूशन है, सेम रिएक्शन है. दिस इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन है, सेम रिएजेंट्स है, सेम रिएक्शन है, बट क्या है डिफरेंस क्या है. अच्छा देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में Cu C ट्रिपल बॉन्ड Cu रेड पीपीटी आता है. अच्छा दिस थ्री एग्जांपल के लिए यू यूजिंग दिस रिएजेंट है. फर्स्ट रिएक्शन में रेड पीपीटी. अच्छा सेकंड रिएक्शन में CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cu. अच्छा थर्ड में नो रिएक्शन है. These two reagents are used to test for a difference between terminal alkyne, non-terminal alkyne. Test for acidic hydrogen. That's it. अच्छा this is not a failing solution. फेलिंग सॉल्यूशन कहां पर सल्फेट होता है, Q प्लस क्लोराइड नहीं होता है. दिस इज नॉट अ फेलिंग सॉल्यूशन है, बट टेस्ट पर एसिडिक हाइड्रोजन अल्काइन के लिए यहां से सिल्वर मिरर होता है, यहां रेड पीपीटी होता है. दैट इज द डिफरेंस. यूजिंग दिस रिएजेंट है रेड पीपीटी होता है, यूजिंग दिस रिएजेंट है सिल्वर मिरर होता है. टेस्ट पर डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए ये टेस्ट होता है. अच्छा देन अच्छा मोस्टली बेंजीन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर EAS रिएक्शंस. अच्छा EAS reactions separately we already made one video EAS reactions. Electrophilic aromatic substitution, nitration, fluorination. Then we can discuss in case of carbocations and intermediate compounds. Alkyl halides में glucose reagent क्या होता है? What is meant by glucose reagent? What is the use of glucose reagent? What is the use of glucose reagent? अच्छा anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. अच्छा what is the glucose reagent है? Anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. This is called glucose reagent. अच्छा differentiating between primary, secondary, tertiary alcohols. Difference between primary, secondary, tertiary alcohols. देखो primary alcohol. अच्छा primary alcohols should not give any PPT turbidity at room temperature. No turbidity. No turbidity at room temperature. No turbidity, no PPT. But secondary alcohol PPT बनता है within 5 minutes.
अच्छा turbidity within 5 minutes. अच्छा tertiary alcohol immediately बनते हैं. अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछता है which of the following given alcohols having more reactive towards glucose reagent. अच्छा unfortunately in option में they are not providing this is primary secondary tertiary. Based on IUPAC names you have to identify which of the following is tertiary. Previously asked this question also asked है. अच्छा but information क्या है? Primary alcohol no turbidity at room temperature है. Secondary alcohol gives turbidity within 5 minutes है. Tertiary alcohol gives the turbidity immediately only. Of course, Victor's May test also there, but unfortunately, Victor May test is not given in NCERT textbook. Achha, Victor May test here. I am giving information for you because which is not given in NCERT textbook. I am giving just information. Victor's May test. Victor's May test. Achha, which is not given in NCERT textbook, but previously asked some years ago. Previously asked. But आप याद करो, simply याद करो. अच्छा विक्टर में टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ब्लड रेड कलर, वाइन रेड कलर, ब्लड रेड कलर. इट गिव्स ए ब्लड रेड कलर. A secondary alcohol gives a blue color. Tertiary no color. Victor में टेस्ट में, but which are not given NCERT textbook है, my dear students. But information के लिए हम ये. How to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohol. अच्छा this is reagent, glucose reagent है, very important, right? चलो. This is glucose reagent. Blood red color है, blue color है, and no color है. Tertiary alcohol के लिए no color, right? चलो. Next. अच्छा ये वाला सिंपल फंडा आपके लिए. सिंपल फंडा. अच्छा PCl5, PCl3 टाइनाइल क्लोराइड है. देखो alcohol, how alcohol react with this reagent? How alcohol react with this reagent? Shall I go for this is a अच्छा alcohol है ROH with PCl5 with PCl3 with SOCl. अच्छा whenever SOCl2 we can use pyridine. SN2 mechanism पे pyridine यूज करता है. अच्छा देखो यहां भी अल्काइल हैलाइड्स है POCl3 प्लस HCl. अच्छा यहां भी RCl है प्लस H3 PO3 बनता है. अच्छा ये आल्सो RCl है SO2 plus HCl. अच्छा which of the following is the best yield, best method to prepare alkyl halides are nothing but this one. This is called Darjan method बोलते हैं. अच्छा NCERT में not given है, but इसका नाम क्या होता है? Darjan process. This is called Darjan. Darjan method है. Best yield. Which are the sometime previously you can check which are the following reaction में alkyl halides are better yield. Because यहाँ से acid है, यहाँ भी acid है. Using base है, उसको हम easily adjust कर सकते हैं acid को. अच्छा, the product only remaining is called alkyl halides. Best method to get a better yield of the alkyl halides we are using PCl5. आपको similar reaction carboxylic acid के लिए था. In case of carboxylic acid क्या बनता है? RCOCl बनता है. In case of alcohol के लिए RCl बनता है. अच्छा same reaction है. I am going for same reaction है. Suppose I am going for same reaction है. For acid के लिए RCOH है plus PCl5 है. अच्छा RCOCl है plus POCl3 plus HCl है. Same reaction है. अच्छा with PCl3 के लिए क्या होता है? Same reaction है. RCOCl है plus H3PO3. अच्छा देख again same reactions हो. कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड क्लोराइड्स है. अल्कोहल के लिए अल्काइल हैलाइड्स है. With PCl5, PCl3, SOCl. You can check it previously asked this reagents के बारे में. What will happen? Which of the following is better yield of the alkyl halide? Better yield of the alkyl acid halides. So they may ask this reagents, right? अच्छा यहाँ देखो, ये Dawes process है.
डाउस प्रोसेस इज एग्जांपल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। द रीजन इज कार्बन की हैलोजन की पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ఉంటుంది కదా, పార్షియల్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా, बहुत very difficult for replacement है, that's why using drastic condition। अच्छा, ड्रास्टिक कंडीशन में बनता है, नो डाउट बनता है, क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, ड्रास्टिक कंडीशन बनता है। बट ईयर वन फंडा इज गिवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, if minus m groups increases on a meta ortho, sorry, minus m groups at ortho and para position increases the reactivity of NAS reaction, increase the reactivity of NAS reactions। अच्छा देखो फर्स्ट एग्जांपल में, आप देखो एक फर्स्ट एग्जांपल में NO2 ग्रुप पैरा पोजिशन। अच्छा, टेम्परेचर चाहिए, इससे कम चाहिए। अच्छा, यहां भी बनते हैं, नो डाउट यहां भी बनते हैं। अच्छा, इजीली बनते हैं व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस। अच्छा देखो, व्हेन कंपेयर टू दिस है टेम्परेचर स्टिल कम है, स्टिल लेस ओनली। यहां भी बनते हैं, आर्थो पैरा दोनों में माइनस एम ग्रुप्स है। अच्छा, यहां भी इजीली बनते हैं। अच्छा, यहां भी इजीली बनते हैं। अच्छा, OH NO2 NO, नो डाउट। अच्छा, सपोज स्टिल इंक्रीजेस है, देखो स्टिल इंक्रीजेस है, आर्थो पैरा आर्थो कंप्लीट है, माइनस एम ग्रुप्स है, स्टिल इस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस हो। अच्छा, जस्ट वार्म करो, this 10 degrees is sufficient, just warm करो, then आपको बनते हैं वेरी OH है, NO2 है, NO2 है, NO2 है, कोई दिक्कत नहीं आपका है, कोई दिक्कत नहीं आपका है, राइट। चलो, ये वाला भी दिया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका, NAS reactions minus m increases NAS increases, plus m increases EAS reactions are increases reactivity। अच्छा देखो, ये वाला क्या है, दिस इज EAS reaction, NAS reactions only, this is NAS reactions only। अच्छा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बेंजीन होता है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बेंजीन होता है। अच्छा, ये एमाइड देखो, एमाइड स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, दिस Cl माइनस इज वीक न्यूक्लियोफाइल, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ए ग्रुप बाय अनदर एटम और ए ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूशन। व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई ये बनता है। बट ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, कैसा, वन मोर वीडियो वी कैन मेक दिस फॉर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर बेंजीन, देयर आई कैन डिस्कस हाउ विल गेट बेंजीन इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड ऐसा बनता है आपका। अच्छा, आउटसाइड एब्नॉर्मल पाई बॉन्ड बनते हैं, आउटसाइड एब्नॉर्मल पाई बॉन्ड बनते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन है, बट इज एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज़ आउटसाइड एब्नॉर्मल पाई बॉन्ड ओनली। अच्छा, आउटसाइड एब्नॉर्मल पाई बॉन्ड ओनली, इस एब्नॉर्मल पाई बॉन्ड फ्रॉम आउटसाइड ओनली, आउटसाइड ओनली। अच्छा, डोंट गो फॉर इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इज एरोमेटिक कंपाउंड ओनली। अच्छा, delocalized pi electron you have to count inside the ring only, outside the ring never be contributed है delocalization के लिए, still it is aromatic because previously asked the question whether the compound is aromatic or non aromatic, right। अच्छा, ये देखो, ये वाला आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा लिंक है, थोड़ा लिंक है। अच्छा, कैसा है, C2H5Cl KCN। अच्छा, KCN इज आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज कैटायन हैविंग यूनिट गैस कॉन्फिगरेशन आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब ये वाला क्या होता है, C2H5
CN होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। सपोज मैंने AgCN दिया, it is not a covalent, it is not an ionic compound, it is a covalent compound. We should not write Ag plus Cn minus 1 because cations having should and gas configuration is nothing but covalent character. कोवेलेंट कैरेक्टर में कैसा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। Which of the following compound new CC bond will be formed है? Which of the following compound no CC bond is formed है? यहाँ से क्या होता है, C2H5NC होता है। That's why we call a coordination compounds में ये बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। कार्बन कैन डोनेट, नाइट्रोजन कैन डोनेट, एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। सिमिलरली ये वाला KNO2 AgNO2 सिमिलरली सेम है, सिमिलरली सेम है, सिमिलरली सेम है। देखो यहाँ पे C2H5Cl KNO2 K plus NO2 माइनस, राइट। अच्छा देखो यहाँ कैसा लिखूंगा, K plus NO2 माइनस, अच्छा K plus ये ऐसा लिखूंगा। नाउ बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब मेजर कंपाउंड क्या होता है, ये नाइट्राइट होता है, इथाइल नाइट्राइट होता है मेजर कंपाउंड। बट इन केस ऑफ AgNO2 ना, वी शुड नॉट राइट लाइक दैट। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड को वी शुड नॉट स्प्लिट, लाइक CH4 को C+4 नहीं बनता है, तो बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन होता है। अच्छा मेजर कंपाउंड क्या होता है, C2H5 N डबल बॉन्ड वो D2 बॉन्ड, नाइट्रो कंपाउंड, ये नाइट्रेट है, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रेट। That's why these are called NO2CN minus, we call as ambidentate ligand in coordination chemistry, which are ambidentate ligand. So this is next step. I go for alcohols. I go for alcohols. अच्छा no doubt this is nothing but a hydroboration of alkenes. Hydroboration of alkene follow anti-Markovnikov rule. This is nothing but anti-Markovnikov rule है। देखो ये anti-Markovnikov rule है, एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल है। अच्छा एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल है, दिस इज सिन एडिशन बोलता है। सिन एडिशन मींस वी कैन ऐड H plus OH minus, दैट्स इट। जनरली एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल हमको प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं ना, मार्कोनिकॉफ रूल में सेकेंडरी टेरेस्ट्री है। अच्छा एक एग्जांपल देखो आपको, RCH डबल बॉन्ड CH2, अच्छा बाय यूजिंग दिस reagent है प्राइमरी अल्कोहल मेजर कंपाउंड, बिकॉज़ एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल इज एन एग्जांपल फॉर फ्री रेडिकलेशन। Radicalization में there is no rearrangement reactions. So final compounds are nothing but primary alkyl halide, RCH2CH2OH, primary alkyls. अच्छा वो negative reagent is added to double bond where more number of hydrogens. अच्छा don't be confused only. Hydroboration means very simple है, sine addition है। But in case of this one cyclic compound के लिए आपको, अच्छा देखो ये वाला cyclic compound है, आपको ये वाला देखो कैसे ऐड करना अभी देखो। अच्छा ఇక్కడ ఒక ఐడియల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఐడియల్ లేదు మిథైల్ గ్రూప్। అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ నెగటివ్ పార్ట్ ఇస్ యాడెడ్ టు డబుల్ బాండ్ వేర్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్। अच्छा OH should be added to each hydrogen negative, so numbering is given, suppose 1 2 3 4 5 6 where OH should be added second carbon। अच्छा OH is added to second carbon, OH added। अच्छा H is also added to the H and methyl। देखो ये H and OH are same side होना चाहिए, सी नहीं सुंदर, ये H and OH are same side है, towards you or away from you, both are adding same side। साइक्लिक कंपाउंड में आपका बनता है सिन एडिशन है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आई थिंक एलिपेटिक कंपाउंड में देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ सिन एंड एंटी। साइक्लिक कंपाउंड में इंपॉर्टेंस है सिन कैसा है, एंटी कैसा होता है। अच्छा हाइड्रोबोरेशन फॉलोस एंटी मार्कोनिक रूल है, सिंपल ये छोड़ दो, एंटी मार्कोनिक रूल में मेजर कंपाउंड्स क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, मेजर कंपाउंड है प्राइमरी अल्कोहल, मेजर कंपाउंड है प्राइमरी, राइट।
अच्छा नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहां पर एट अबाउट 300, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। अच्छा डिहाइड्रेशन को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं ना, removal of hydrogen also nothing but oxidation. अच्छा this is test also used for distinguish primary secondary tertiary alcohols है। अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स है। अच्छा प्राइमरी अल्कोहल गिव्स aldehyde है, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन है, टेरिशरी गिव्स अल्कीन्स है। अच्छा प्राइमरी अल्कोहल्स अच्छा सिंपल जनरल एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू, जनरल एग्जांपल which are given जनरल एग्जांपल। अच्छा एक प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने, कहां पर है अबाउट 300 है, आपको बनते हैं एस्टरडिहाइड है प्लस H aldehyde बनते हैं। अच्छा मैं गो फॉर सेकेंडरी अल्कोहल है, आई गो फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एस्टोन बनते हैं, एस्टोन बनते हैं। अच्छा टेरिशरी के लिए अल्कीन बनता है, टेरिशरी के लिए डिहाइड्रेशन है, आई गो फॉर टेरिशरी, इन केस ऑफ टेरिशरी के लिए आई एम राइटिंग ओवर हियर टेरिशरी, सी नॉट कलर, टेरिशरी के लिए CH3 CH3 OH टेरिशरी अल्कोहल। अच्छा बनते हैं अल्कीन है, टेरिशरी में जरा देख लीजिए, टेरिशरी में ऑलवेज टेरिशरी इज एक्सेप्शन केसेस है, टेरिशरी में मोर अल्कीन्स आर मेजर कंपाउंड्स, एलिमिनेशन रिएक्शन का मोर फेवर होता है बिकॉज़ रिएक्टिविटी मोर। यहां से डिहाइड्रेशन है, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा कहां पर एट अबाउट 300 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली सो मेनी टाइम्स आस्क्ड, राइट। अच्छा देखो ये वाला फिनोल में एक है, अच्छा ब्रोमीन वाटर है, फिनोल है। अच्छा ब्रोमीन वाटर में क्या बनता है, अच्छा दिस इज एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा फिनोल इज एन एग्जांपल फॉर EASR because this is ortho para-diatic group है, OH group is ortho and para-diatic group है, but bromine water यूज किया कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन होता है, इंस्टेड ऑफ वाटर CCl4 यूज किया ओनली ऑर्थो पैरा आता है, बट ये वाटर इज गिवन है, इन केस ऑफ वाटर में क्या होता है, अच्छा OH है, Br2 ये Br2 ये Br2, अच्छा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये व्हाइट पीपीटी है, ये व्हाइट पीपीटी है कंप्लीट बिकॉज़ दिस मोर रिएक्टिव है, OH group is on benzene ring है, reactivity increases है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बिकॉज़ ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन वो 3 पिक्रिक एसिड होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल इज नथिंग बट NO2 प्लस ना। अच्छा सिमिलर रिएक्शन है NO2 सिमिलर रिएक्शन, दिस कॉल्ड पिक्रिक एसिड बोलता है, इट एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है। बट व्हेनेवर दिल एचन तो यूज किया ना 2 आइसोमर्स फॉर्म, ऑर्थो आइसोमर है, पैरा आइसोमर, व्हिच आइसोमर इज मोस्ट स्टेबल है, ऑर्थो इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो डाउट एट ऑल पैरा आइसोमर इज मोस्ट स्टेबल, बट ये 2 आइसोमर्स बनता है, कैसे 2 आइसोमर्स है, यहां से एक आइसोमर कैसा होता है ऑर्थोनाइट, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ऑर्थो आइसोमर इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा पैरा आइसोमर है, suppose here also instead of Br2 instead of water CCl4 used, again 2 isomers है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल पैरा ब्रोमो। अच्छा EAS reaction में most frequently asked reagents only are given है, अच्छा all EAS reactions are very easy था, but most frequently used reactions are these are। next this is I think phenol है because previously इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, फिनोल का प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है, पैरा बेंजोफिनोल बनता है, पैरा बेंजोफिनोल
क्विनोन बनता है। अच्छा, प्रीवियसली आई थिंक paracetic is also there. Paracetic में catechol resorcin. Resorcin is catechol is a major compound, but which is not given in NCERT textbook. Only potassium dichromate और sodium dichromate H2SO4 है। अच्छा, NCERT में क्या दिया वही reagent हम डिस्कस करना, because 99% chances are there what are given in NCERT textbook reagents, complete reagents. देखो नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस है। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस में बेस्ट एग्जांपल फॉर क्या सर? SN2 मैकेनिज्म, हमारे SN2 मैकेनिज्म एक अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोऑक्साइड है, लाइक सोडियम अल्कोऑक्साइड है, इनर्ट सॉल्वेंट है, हाई टेम्परेचर इनर्ट सॉल्वेंट है। अच्छा देखो NaCl ये बनता है क्या? ईथर है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा, दे आस्क्ड द नेम रिएक्शन, वेरी इजी था, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, सम टाइम क्वेश्चन ऐसा बनता है आपका, वो Na मिथाइल आयोडाइड एनिसोल, बट सपोज ऐसा दिया कंपाउंड है CH3ONA। अच्छा, यहां Br दिया ना, ये नहीं बनता है। प्रीवियसली सो मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन है, बिकॉज व्हेनेवर कार्ब हियर मिथाइल कार्बोकेटाइन इजीली बनता है, बट फिनाइल कार्बोकेटाइन सबसे अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड करते ये नहीं बनता है। अच्छा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे मैं आस्क यू, अच्छा, one more better example which are given NCERT textbook है। अच्छा देखो, one more example है given NCERT textbook है, आप देख लीजिए, एक एग्जांपल है आप देखिए। NCERT टेक्स्ट बुक में दिया सर ये वाला, आप देखिए। अच्छा, ये काम है, दूसरा है अच्छा, मेजर कंपाउंड बताओ, व्हाट इज द मेजर कंपाउंड, मेजर कंपाउंड क्या है? यहाँ मेजर कंपाउंड ईथर सर, यहाँ मेजर कंपाउंड ईथर है, नो डाउट मेजर कंपाउंड ईथर है। बट देखो, व्हेनेवर टेरिशियरी अल्काइल एसिड्स अंडरगोस एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, टेरिशियरी अल्काइल। नाउ इट अंडरगोस एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ अल्कीन है। अच्छा देखो, विच आर गिवन NCERT टेक्स्ट बुक में, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये वाला अल्कीन बनता है, राइट, अल्कीन बनता है, वेरी सिंपल विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। अच्छा, सिंपल एडिंग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, दे में आस्क सम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस फॉर यू, राइट। This is Williamson सिंथेसिस रिएक्शन में regarding to application questions which are given NCERT टेक्स्ट बुक। चले, अच्छा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कोल्ड HI आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट था कोल्ड HI। अच्छा, कोल्ड HI विद ईथर है, समटाइम SN2 समटाइम SN1। अच्छा, when SN2 when SN1। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल ईथर आई कैन टेक ईथर, सिंपल ईथर है C2H5OCH3 कोल्ड HI। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग फॉर मैकेनिज्म, है सिंपल है। व्हेन नाउ दिस है I minus go along with royal alkyl, one alcohol है। अच्छा, here I minus will go, I minus always will goes along with the lower alkyl group,
मतलब दो रिएक्टर में CH3 आई, एक C2H5 OH। अच्छा मैकेनिज्म में प्रोटोनेशन होता है पहले, बल्कि ग्रुप इज गुड लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा प्रोटोनेशन के क्या मतलब है, ये प्रोटोनेशन होता है, बल्कि ग्रुप इज लिविंग ग्रुप है, अल्कोहल एंड मेटाल, सिंपल not required mechanism over here, only we are discussing about reagents today. But ये condition क्या है, condition I am telling condition over here, if condition if tertiary alkyl बेंजाइल एलाइल में है, देन इसका रिवर्स स्टेटमेंट, हाइमेनेस गोस विद टेरिशियरी, हाइमेनेस गोस विद बेंजाइल, हाइमेनेस गोस विद अल्काइल एलाइल। अच्छा दिस इज एन एग्जांपल फॉर SN2 है, दिस इज एन एग्जांपल फॉर SN1 मैकेनिज्म। ओके SN1 में टेरिशियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, एलाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। आई टेल यू वन सिंपल एग्जांपल है, I'll tell you one simple example. अच्छा this time है with cold H है तो I minus go along with the larger bulky group because it's in SN1 mechanism. In case tertiary, in case of benzyl, in case of allyl है SN1 reaction बनता है। मतलब ये मेजर कंपाउंड क्या होता है, tertiary alkyl halide होता है, अनमेटल अल्कोहल होता है। ये डिफरेंस आप ऑब्जर्व करो। अच्छा 99% दे विल आस्क क्वेश्चन कोल्ड एच हॉट एच में दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ हॉट एच के लिए 2 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड है, कोल्ड एच के लिए एक मॉलिक्यूल अल्काइल अल्काइल, एक मॉलिक्यूल अल्काइल है, एक मॉलिक्यूल अल्काइल है, व्हिच इज अल्काइल व्हिच इज अल्काइल है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। अच्छा कॉम्बिनेशन में देखो अदर देन टेरिशियरी बेंजाइल एलाइल इज गिवन है, आपको याद करना I माइनस गो अलोंग विद लोअर के ग्रुप है, कि बेंजाइल एलाइल बेंजाइल tertiary allyl is given है, you go for the like I minus go along with this group one, tertiary group है, benzyl group है, allyl group है, this SN1 mechanism, this SN2 mechanism, right? चलो अच्छा NPS reaction, N-bromosuccinimide is allylic substitution। अच्छा फ्लोरीन UV लाइट गाने हाई टेंपरेचर गाने, now हाई टेंपरेचर गाने NBS रिएक्शन है, N-bromosuccinimide है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मींस दिस इज सपोज वी आर राइटिंग दिस कंपाउंड लाइक दिस, अच्छा नाउ एलाइल ग्रुप इज दिस इज एलाइल ग्रुप है, sp3 कार्बन व्हिच इज SN2 डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइल है, एलाइल कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा NBA से तो ब्रोमो रायली Cl2 इतने का CH2Cl रहा है, वन मोर मॉलिक्यूल लेते हैं इनको Cl रहा है, वन मोर मॉलिक्यूल लेते हैं अनदर Cl इज रिप्लेस्ड, वन मोर मॉलिक्यूल लेते एक मॉलिक्यूल लेते जैसे। बट सपोज टोली ना फ्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्यूमिनियम क्लोराइड इच्छा अनुకోండి, दिस इज ES रिएक्शन, दिस इज फ्री रेडिकल है, दिस फ्री रेडिकल रिएक्शन, दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, this electrophilic aromatic substitution reaction है, methyl is because of hyperconjugation orthoparadiatic group only। अच्छा in the presence of just like benzene also, benzene chlorination in the presence of aluminum chlorobenzene है, in the presence of sunlight है UV light है, that is nothing but BHC है, gamaxin है, linden है, reagent is different only। now here आपको क्या बनेगा, आपको ऑर्थोक्लोरो बनेगा और पैराक्लोरो बनेगा, because orthoparadiatic group है। अच्छा रिसेंटली ये NBS रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन भी आज, साइड चेन में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, NBS आ रहा Cl2HV NBS होता है, राइट? NBS इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, N-bromosuccinimide। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड में वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, Cl फॉर एग्जांपल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर दे में आस्क, अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है
अच्छा, formaldehyde is more reactive than acetaldehyde or than H2. अच्छा, for your kind of information, acetaldehyde is more reactive than benzaldehyde also. That means aliphatic is more reactive than aromatic. अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक acetaldehyde लिया, एक फॉर्मल ले लिया, अच्छा CN माइनस ऐड करना। अच्छा, CN माइनस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का फंक्शन क्या है? अटैक एट द सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मोर है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखो, बिकॉज ऑफ प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लेस है। फॉर्मल में देयर इज नो प्लस आई माइनस आई ग्रुप है। अच्छा, दिस पोलर मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली ऐड कर सकता है। अच्छा, यहां से ऐड करना मुश्किल है, CH3CO ऐड करना मुश्किल होता है, रिएक्टिविटी लेस है। अच्छा सर, योर डाउट सर, व्हाई नॉट बेंजोल्डिहाइड? सर, बेंजोल्डिहाइड में स्टिल मुश्किल है, स्टिल मुश्किल है। रीजन क्यों है? बेंजोल्डिहाइड में ये मैकेनिज्म देखो, आपको ये मैकेनिज्म देखो। अच्छा देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है यहाँ। कार्बन का कंडीशन, कार्बन में लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना, बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन है। कार्बन में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। न्यूक्लियोफिल कैन नॉट अटैक। न्यूक्लियोफिलिक के लिए अटैक के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मोर होना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लेस होता है बिकॉज माइग्रेशन है। एरोमेटिक ऑल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक ऑल्डिहाइड्स। अच्छा, सिंपल वन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सिंपल वन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका, एसिटाल्डिहाइड है, अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ HCN है। न्यूक्लियोफिलिकेशन में फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड करना? CN माइनस ऐड करना। अच्छा, कैसे ऐड करते हैं CN माइनस? where electron deficiency more है, that nucleophile added only. अच्छा, CH3 CO minus CN, अच्छा H followed by H plus HCN में। अच्छा, क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलता है वाला। अच्छा, OH HCN। अच्छा, वन मोर स्टेप आल्सो दे में आस्क, हाइड्रोलाइसिस क्या है? whenever organic compound में CN ग्रुप है, undergoes hydrolysis we get carboxylic acid है, CH3 COH HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा देखो, ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है। अच्छा, सोडियम, सपोज वी आर एडिंग वन मोर रिएजेंट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अच्छा NaCO3 है, सपोज द सेम रिएजेंट है, सपोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, वी कैन ऐड। अच्छा, क्या बनेगा? अच्छा, सोडियम बाइसल्फेट में एक फंडा है, इजीली आइसोलेट करता है ऑल्डिहाइड कीटोन का। मिथाइल कीटोन के लिए ऑल्डिहाइड कैन ऐड कर सकता है, वेरी सिंपल है। अच्छा देखो, ये वाला, ये माइनस है, ये Na प्लस है, ये माइनस है, Na प्लस है, बट ये रीअरेंज होता है लाइक CH3 CO Na H and HS2। ओके, ये वाला बनता है सोडियम बाइसल्फेट है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। दिस इज स्पेशली फॉर ऑल्डिहाइड के लिए, अल्फा मिथाइल कीटोन के लिए। अच्छा, एस्टोन के लिए कम रिएक्शन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए स्टिल कम रिएक्शंस होता है। अच्छा, इधर HCN కావచ్చు, अमोनिया కావచ్చు, इन ऑल रिएक्शंस आर नथिंग बट एग्जांपल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इन केस ऑफ अल्कोहल एसिटॉल एसिटॉल बनता है, इन केस ऑफ अल्कोहल के लिए एसिटॉल एसिटॉल बनता है। देखो अल्कोहल के लिए एक बार, अच्छा RC डबल बॉन्ड OH है, अच्छा ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बन में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मोर है। अच्छा, वहां नेगेटिव, मतलब RCOH H, यहाँ क्या बनेगा? वो R, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं।
एमीएस्टर्स बोलते हैं। अच्छा चलो, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। अच्छा R-OH है, R-OH है। अच्छा देखो, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, क्या बनता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा यहाँ से OH है, यहाँ से हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ डैश। देखो RCOR', अच्छा वो फिजिकल एसीटल बनता है। एग्जांपल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एमीएस्टर है, एस्टर है, राइट, एमीएस्टर है, एस्टर है। चलो ये वाला इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अच्छा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक हाइड्रोजन गाने, फिनाइल हाइड्रोजन गाने। अच्छा जनरली दिस रिएजेंट्स आर जनरली यूज्ड है ऑन टैबलेट फॉर्म, आई थिंक गिवन है, हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन है। अच्छा 2,4 DNP అంటే 2,4 DNP అంటే లైక్ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर कार्बोनिल ग्रुप है, ब्राडीज रिएजेंट बोलता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर कार्बोनिल ग्रुप है। सो व्हेनेवर दिस ऑरेंज रेड पीपीटी आएंगे, वेदर aldehyde और कीटोन है, aldehyde और कीटोन है, क्या बनते हैं, ऑरेंज रेड पीपीटी बनते हैं। अच्छा कंफर्मेशन टेस्ट मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, देखो अच्छा देखो मैंने यहाँ एस्टॉल दिए थे। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकालते हैं। अच्छा सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर, अच्छा CH3 CHO ऐसा लिखा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बनता है ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड NH। अच्छा हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोक्सिलेमीन होता है, हाइड्रोक्सिलेमीन ऑक्सेन्स बोलते हैं। 2,4 फिनाइल हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू 2,4 फिनाइल हाइड्रोजोन है, सेमी कार्बोजोन है, इसका एडिशन। अच्छा ये मैंने लिखा pH is equal to 5 to 7 है। Why we are using pH is equal to 5 to 7 means less acidic medium maintain करना चाहिए, because these are not strong nucleophilic reagents. Like CN minus is strong nucleophile reagent, easily can attack, but these are not strong nucleophilic reagents. First you have to make that protonation strong more electron deficient है, then only it can add it over it. अच्छा mechanism not required, I am not telling mechanism, but you remember pH is equal to 5, less acidic medium is required. Strong acidic medium में नहीं बनता है, बेसिक मीडियम में नहीं बनता है, बट एशियन बेसिक मीडियम में बनता है, बिकॉज़ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कैन ऐड एनी हाउ, इट कैन ऐड CN माइनस एट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन है, बड़े मुश्किल होता है ये वाला। अच्छा टोलिन्स रिएजेंट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड है, सिंपल आई एम टेलिंग वन नेम्ड रिएक्शन में टोलिन्स रिएजेंट हम डिस्कस किया। टोलिन्स रिएजेंट है, टोलिन्स रिएजेंट रिड्यूसेस व्हाट, अच्छा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का टोलिन्स रिएजेंट है। टोलिन्स रिएजेंट रिड्यूसेस व्हाट, reduces Quintal reduces aldehydes but not ketones, and alpha hydroxy ketones also it can reduce alpha hydroxy ketones also. That's why fructose also, Tollens reagent also reduce fructose also. Fructose में क्या है, alpha hydroxy ketone, but not respond to, अच्छा not respond to, अच्छा not respond to ketones। अच्छा सिंपल है, सिंपल देखो, सिंपल देखो, aldehyde है, Tollens reagent है Ag2, सिंपली RCOH प्लस सिल्वर में, पर कीटोन के लिए नो रिएक्शन। अच्छा फेलिंग सॉल्यूशन में ऐसा होता है, फेलिंग सॉल्यूशन में ऐसा होता है,
बट फेलिंग सॉल्यूशन में एरोमेटिक ऑलरेडी के लिए नहीं है, एलिपेटिक ऑलरेडी, बट इज एरोमेटिक ऑलरेडी आल्सो, एलिपेटिक ऑलरेडी आल्सो. अच्छा, ऑल्डिहाइड्स हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ऑल्डिहाइड्स है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यू कैन रेस्पॉन्ड. अच्छा, we made one video, particular video for named reaction. If any doubt, you can watch there. Acha, iodoform is also very important. Iodoform reaction, iodoform reaction. Acha, here also I am telling you with simple funda. I am not going for mechanism. Iodoform के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा मेथाइल कीटोन होना चाहिए. अच्छा, अल्फा मेथाइल अल्फा मिथाइल मतलब सी डब्ल्यू बॉन्ड वो सी, अल्फा मिथाइल दिस होना चाहिए, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, कार्बोनिल ये होना चाहिए, देन अंडरगो साइटोफॉर्म रिएक्शन. अच्छा, पर्टिकुलरली फॉर ऑल्डिहाइड्स में, ऑल्डिहाइड कीटोन में, फॉर्माल्डिहाइड में नो रिएक्शन है, दिस ग्रुप इज नॉट देयर. अच्छा, बेंजोल्डिहाइड में नो रिएक्शन है बिकॉज़ दैट ग्रुप इज नॉट देयर. But acetaldehyde, yes, iodoform is NaOH. This is a reagent, iodoform reagent. Or sometimes NaOI also they will provide it. Sometimes they may ask like NaOI also. अच्छा, whenever this one iodoform का reaction कैसा होता है? CH8. This is iodoform. अच्छा, 2 कार्बन में ये कार्बन है CH3 में जाएंगे. अच्छा, एक और बचा है, दिस इज नथिंग बट HCO प्लस Na प्लस H2O, बट एक्स नॉट रखिए. अच्छा, एसिटाल्डिहाइड में है, देखो एसीटोन में भी है ना. अच्छा, देखो एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, एसीटोन में भी है ना. यहां भी देखो अल्फा CO CH3 है. अच्छा, देखो एक मॉलिक्यूल बनता है CH3. अच्छा, रिमेनिंग 2 कार्बन एसिड बनता है CH3COON, आइडोफॉर्म. अच्छा, फॉर एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड वो CH3. अच्छा, यहां भी है ना अल्फा CO CH3 ग्रुप है. अच्छा, ये भी बनता है आइडोफॉर्म रिएक्शन. अच्छा, मैंने व्हाट अबाउट अल्कोहल रिमेनिंग, व्हाट अबाउट अल्कोहल्स है, what about alcohols? Alcohols में primary alcohols, among primary alcohol only ethyl alcohol gives iodoform test. अच्छा, among secondary alcohols only two alkanols give the test. Only 2 alkanols, मतलब देखो this is 2 alkanol, right? Secondary alcohol gives. Actually, this is also secondary alcohol, but this is not give because 3 alkanol. Only 2 alkanols are used test. अच्छा, tertiary alcohol के लिए no alcohols. देखो प्राइमरी में only ethyl alcohol है, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 अल्कोनॉल्स ओनली, टेरिशियरी में नो अल्कोहल्स, राइट. दिस इज अ, चलो shall I go for next? अच्छा, फेलिंग टेस्ट आल्सो सेम है. फेलिंग टेस्ट में क्या है? इट रेस्पॉन्स एलिपेटिक aldehydes but not aromatic aldehydes and alpha hydroxy ketones but not aromatic aldehydes and ketones. Simply RCHO, अच्छा, CuO converted into RCOH plus Cu2, रेड पीपीटी होता है. सिंपल मैटर है. अच्छा, वहां सिल्वर मिल रहा है, रेड पीपीटी. फेलिंग सॉल्यूशन ये भी बहुत बनता है, बट सिंपल व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन.
एरोमेटिक ऑल्डिहाइड के रिएक्शन नहीं है, एलिफेटिक ऑल्डिहाइड के लिए। अच्छा, वी मेड वन वीडियो ना, यू हैव एनी डाउट वी कैन गो फॉर फेलिंग सॉल्यूशन देयर, बट ये रिएजेंट के लिए जस्ट आई हैव गो फॉर टॉलिस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। नाउ ये वाला अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन में कंडीशन है, कंडीशन क्या है अल्काइल बेंजीन में, अल्फा बेंजल हाइड्रोजन means benzylic hydrogen should be required. Benzylic hydrogens are required. Benzylic hydrogens are converted into benzoic acid. Water में भी the length of the carbon chain. Water में भी the length of the carbon chain. चलो मैंने एक काम करूंगा, एक मिथाइल बेंजीन है, एक मिथाइल बेंजीन है। अच्छा देखो ये इथाइल बेंजीन है, एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, अच्छा एक टेरिशियरी ब्यूटेन, टेरिशियरी ब्यूटेन। अच्छा बेंजिलिक मींस ये वाला बेंजिलिक है। अच्छा देखो ये हाइड्रोजन सर बेंजिलिक हाइड्रोजन, whenever benzylic hydrogens are converted into benzoic acid, no doubt water may be the length of the carbon chain, blindly you can go for, actually you can expand CH2 CH3, CH2 means benzylic hydrogens are there converted into benzoic acid, no doubt. actually here also benzylic hydrogen is there, actually converted into benzoic acid, water may be the length of the carbon chain, benzoic acid, but here sir CC bond cleavage मुश्किल है, CH bond easy cleavage कर सकता है, CC bond cleavage मुश्किल है, ये नो रिएक्शन। अच्छा ऑल दिस रिएजेंट्स के बारे में प्रीवियसली आस्क्ड करता क्वेश्चंस ऑन लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन है, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट एक्सेप्ट टेरिशियरी अल्काइल ग्रुप में देयर इज नो CH बॉन्ड है, देयर इज नो बेंजिलिक हाइड्रोजन, देयर इज नो रिएक्शन, बिकॉज़ CC बॉन्ड क्लीवेज वेरी डिफिकल्ट था। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है P4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ना। अच्छा डिहाइड्रेशन मतलब आप ऐसा लिखो, अच्छा P4 वोटन में क्या रिमूव करा, अच्छा रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा एसिडिक एनहाइड्रेट बनेगा, बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्रेट, एनहाइड्रस बनेगा। अच्छा विदाउट वाटर एसिड है, एसिडिक एनहाइड्रेट है, बिना वाटर है एनहाइड्रेट है। अच्छा वाटर के लिए हाइड्रेट है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा ऑलरेडी दिस डिस्कशन है। अच्छा इस रिएजेंट्स में क्या बनते हैं आप बताओ, RCl बॉन्ड Cl बनता है। अच्छा PCl के लिए POCl3 बाय प्रोडक्ट है प्लस HCl है, PCl3 के लिए क्या है बाय प्रोडक्ट है, H3PO3 बाय प्रोडक्ट है। अच्छा इसके लिए क्या बाय प्रोडक्ट है, SO2 प्लस HCl बाय प्रोडक्ट है। जस्ट लाइक अल्कोहल के, जस्ट लाइक अल्कोहल के क्या यूज किया, सेम वर्जन वी आर यूजिंग, तो PCl5 PCl3 SOCl, सिमिलर रिएक्शंस। अच्छा दिस काइंड ऑफ कन्वर्शन है बनता है बिकॉज़ प्रीवियसली आस्क्ड है। देखो कन्वर्शन ये में क्या बनेगा, कन्वर्शन ये में, अच्छा एक एसिड है एक बेस है, सॉल्ट बनेगा पहले। अच्छा सॉल्ट मींस COONH सॉल्ट, कंपाउंड ए सॉल्ट। अच्छा डेल्टा मींस रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल है, अच्छा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड वो NH2 बनेगा, एमाइड बनेगा कंपाउंड बी। अच्छा स्टिल वन मोर वाटर मॉलिक्यूल है, आपको बनेगा RCl। डेल्टा मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, डेल्टा मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा सिमिलर इक्वेशन आई थिंक नीट 2019 का क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा नीट 2019 का क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला। अच्छा कंपाउंड ये एसिड एंड बेस है, अच्छा क्या बनेगा कंपाउंड ये, देखो
कंपाउंड ए क्या बनेगा, COO NH4 है, COO NH4, just like previous compound A. अच्छा, डेल्टा मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा, कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बी, अच्छा CO NH2, C डबल बॉन्ड O NH। अच्छा, यहां से स्टेप डिफरेंट होता है, फर्दर हीट किया ना, देन रिमूवल ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, वाटर नहीं है। अच्छा, ये थालीमाइड बनते हैं ना, which are the intermediate compound, starting compound in Gabriel Thallimide synthesis में, the starting compound ऐसा है। अच्छा, this is a question asked 2019 नीट के एग्जामिनेशन में, that's why I'm telling you all reagents from NCERT book only they're asking you. अच्छा, ये I written all these reagents from NCERT book only, not from any reference books only. अच्छा, HVZ is nothing but alpha halogenation. Alpha halogenation. Alpha, for example, acetic acid है, Cl2 रेड फॉस्फोरस है। अच्छा, देखो ये फंक्शन ग्रुप है अल्फा का। सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल यूज किया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल यूज किया, CH2 COH बनेगा, 2 मॉलिक्यूल यूज किया। सपोज आई कैन यूज 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैंने 3 मॉलिक्यूल यूज किया, CCl3 COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। अच्छा, दिस इज कॉल्ड अल्फा हैलोजेनेशन रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। अच्छा, रिएजेंट के बारे में क्वेश्चन। अच्छा, फाइनल चैप्टर में आ गया। अच्छा, लिटिल बिट टाइम टेकन है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 to 20 मार्क्स क्वेश्चन दे क्लास बट एक साथ ऑल रिएजेंट्स आर एक साथ है। व्हेनेवर फ्री टाइम है, यू कैन बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन आल्सो यू हैव टू रिवाइज इट very simply, what are the reagents of in organics. Homoanalysis of alkyl halides. Achha, very important in this we get a primary amines hai, secondary amine hai, tertiary amine hai, quaternary amine hai, quaternary amine। अच्छा, which of the following will get, they will ask question, all the above is correct answer होता है, ऐसा compound है। अच्छा, alkyl halide, for example Ri, I can take react with ammonia वाले। अच्छा, क्या बनेगा, रिमूवल ऑफ NHI RNH2, ये प्राइमरी अमीन होगा ना। एक्सेस ऑफ RI, एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया ना, प्राइमरी अमीन से बेसिक कंपाउंड। एक्सेस ऑफ अल्काइल हाइड लिया, देन वी गेट रिमूवल ऑफ वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ HI RNHR। अच्छा, देखो सेकेंडरी अमीन बनता। अच्छा, देखो वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल आयोडाइड है। अच्छा, टेरिशियरी अमीन बन गया, प्लस H टेरिशियरी अमीन बन गया। अच्छा, देखो वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल आयोडाइड है, क्वाटर्नरी, दिस इज टेरिशियरी अमीन। अच्छा, क्वाटर्नरी अमोनियस साल्ट्स R3N प्लस दिस आयोडाइड है, सॉरी आयोडाइड्स, क्वाटर्नरी साल्ट्स बने। समटाइम क्वेश्चंस आस्क ऑल द अबव क्वेश्चन बनते हैं सर। व्हेन अल्काइल हाइड रिएक्ट विद अमोनिया, व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड में फॉर्म, secondary, tertiary, quaternary, all the above is given, all the above is correct। because previously asked है homoanalysis of alkyl halides का। अच्छा, देखो ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये वाला, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का रिएजेंट है ये वाला, एमाइड है, एमाइड है कन्वर्टेड इनटू एमाइन है, 1 कार्बनलेस। अच्छा, n नंबर ऑफ कार्बन्स है, n कार्बन्स है। अच्छा, n-1 कार्बन एमाइंस बने। अच्छा, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है नाइट्रीन्स है, नाइट्रीन्स है। अच्छा, हमारा सिलेबस में एक ही कंपाउंड में इंटरमीडिएट कंपाउंड नाइट्रीन्स होता है, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लेकिन कटियस रिएक्शंस आर नॉट देयर इन सिलेबस है, स्मिथ रिएक्शन नॉट देयर इन सिलेबस है, Rajan rearrangement is not there in syllabus है। So among the given syllabus में ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में only the nitriles are intermediate compounds।
अच्छा देखो, एलिफैटिक कमेंट्स है, एरोमेटिक कमेंट्स, एलिफैटिक कमेंट्स है, एरोमेटिक कमेंट्स। अच्छा, एलिफैटिक कमेंट्स में अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है, लाइक RNH2। आपने ऐसा लिखो HO, HNO2 ऐसा लिखो। अच्छा देखो ये वाला ROH प्लस N2 प्लस H2, एलिफैटिक कमेंट्स में आपको अल्कासर मेजर कंपाउंड है। ऑफ कोर्स हियर whenever protonation है, rearrangement is also possibility there, but अल्कासर मेजर कंपाउंड, अल्कासर मेजर कंपाउंड। बट आपने ये 0 to 5 डिग्री है, देखो 0 to 5 डिग्री है, मेंटेन करो, इसका डाइएजोटेशन रिएक्शन। डाइएजोटेशन रिएक्शन में क्या बनते हैं आपको, बेंजीन डाइज़ोनिक्लोराइड बनते हैं। अच्छा, ये एलिफैटिक डाइज़ोनियम सल्फर अनस्टेबल है, इजीली डिकंपोज होता है, N2 is the most stable room temperature, but this is also unstable है। for example when 10 degrees rise temperature చేశాను అనుకోండి, అది ఇది use phenol, just like alcohol it use phenol, it also unstable होता है। but 0 to 5 degrees is stable compound है, डाइज़ोनियम सल्फर बनते हैं, but above 10 degrees है आपको phenol बनते हैं। अच्छा डिफरेंस देखो, एलिफैटिक कमेंट्स का एरोमेटिक कमेंट्स का डिफरेंस देखो, एरोमेटिक कमेंट्स के लिए, एलिफैटिक कमेंट्स के लिए। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है Innsbruck's reagent है, which are given in NCERT textbook। Innsbruck's reagent है। अच्छा, Innsbruck's reagent है C6H5SO2CS, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। अच्छा, विल गिव सिंपल है, इन केस ऑफ प्राइमरी एमाइंस के लिए, प्राइमरी एमाइंस है, रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, कंपाउंड ए फॉर्म बनता है, कंपाउंड ए सॉल्युबल इन NaOH, दिस इज प्राइमरी एमाइन के लिए। अच्छा, सेकेंडरी एमाइन के लिए, सेकेंडरी एमाइंस के लिए, अच्छा अगेन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, कंपाउंड भी बनता है because removal of HCl only simply, but which is not soluble in NaOH. After this no H3 hydrogens are there, only one hydrogen है replaced by HCl, instead of hydrogen a group is replaced। अच्छा, tertiary एमाइन के लिए नो रिएक्शन। अच्छा, C6H5SO2Cl नो रिएक्शन। अच्छा, ये डिफरेंस है प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशियरी एमाइन्स के लिए, व्हिच आर गिवन NCERT टेक्स्ट बुक है, Innsbruck's reagent के लिए। अच्छा, प्रोटोनेशन ऑफ द ग्रुप ओनली हियर, दिस इज आल्सो प्रीवियसली NCERT टेक्स्ट बुक में गया, प्रीवियसली आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रोटोनेशन है। अच्छा, डायरेक्ट గా प्रोटोनेशन చేయకూడదు, प्रोटोनेशन చేయాలి, बिकॉज़ वी कांट डिसॉल्व प्रोडक्ट ओनली। अच्छा, प्रोटोनेशन, इन प्रोटोनेशन क्या होगा, एसिटाइलेट बनेगा, NHCOCS। अच्छा देखो, मैं ऐसा लिखूंगा CH3CO CH3CO। अच्छा, ये क्या है, एसिटिक एसिड बाहर जाएंगे, एसिलेशन होगा, एसिटाइलेट बोलते हैं। नाउ दिस इज ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप है। अच्छा, लोन पे ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप है, दिस ऑर्थो पैरा, बट ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप है, बट व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल है, पैरा। there is no hydrogen bonding in ortho, para is the most stable। अच्छा, पैरा आइसोमर बनते हैं आपका COCH3। अच्छा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव्स दिस वन NH। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बन सकता है, डायरेक्ट बिकॉज़ एसिड है, बेस है, एसिड बेस है, सॉल्ट बनेगा, व्हेन वो सॉल्ट बनेगा डीएक्टिवेट होता है, मेटा पोजीशन में जाता है BR। but if you want ortho and para isomer, that's why protonation is required only, the protonation of the group is required only, right? चलो, this is I think previously asked 2018 का नीट का क्वेश्चन है,
2018 नीट का क्वेश्चन है। अच्छा R2 मतलब R2 is only 2% given. अच्छा here meta position also given a major compound. The reason यही है NH2 है, नाइट्रेशन मींस HNO3 है। अच्छा आपको क्या बनेगा यहाँ, सपोज इनिलीनियम सॉल्ट बनेगा ना, NH3 प्लस NO3 माइनस है। अच्छा ये वाला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, deactivating group, because of this deactivating group never undergoes FC reaction. There is no Friedel-Crafts reaction in case of aniline, even though all the paradigmatic group because of this is the reason only. Then that's the reason why instead of orthoisomer है, ये meta position में, because whenever deactivating group meta isomer is most stable. At the 2018 reason they asked that. So which is a major component? Para, anyhow para is a major component. After para, meta isomer is a major component. This is also given NCERT test. These are given previously. अच्छा सल्फोनिलिक एसिड, ऑफ कोर्स ब्यूटारायन आल्सो फॉर्म्ड है सल्फोनिक एसिड है। इसका एक और स्टेप भी बनता है। अच्छा ब्यूटारायन है NH3SO3 माइनस एट अबाउट अराउंड 200। अच्छा ये कंपाउंड क्या होता है? अच्छा NH3 प्लस HSO4। अच्छा रीअरेंज होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रीअरेंज होता है, एट 200 में रीअरेंज होता है। दिस इज कॉल्ड सल्फोनिलिक एसिड बोलते हैं। सल्फोनिलिक एसिड नथिंग बट एग्जिस्ट लाइक ए ड्यूटरायन। अच्छा देखो ग्लूकोज है ये वाला, ये ग्लूकोज है प्रीवियसली आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर अव्వచ్చు, टॉलिन्स रिएजेंट अव्వచ్చు, ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ అవ్వచ్చు, మైల్డ్ ఆక్సిజన్, ఎనీ మైల్డ్ ఆక్సిజన్ లైక్ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ है। ग्लूकोनिक एसिड मींस ओनली CHO कन्वर्ट इनटू COH, ग्लूकोनिक एसिड है। अच्छा CHOH टेकन 4 टाइम्स, अच्छा COH, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा सैकरिक एसिड मींस स्ट्रांग एसिड, whenever HNO is strong oxidizing agent है, strong oxidizing agent है। whenever strong oxidizing agent है, सेकेंडरी अल्काइल प्राइमरी अल्काइल ग्रुप वाला अंडरगोस ऑक्सीडेशन है, ये भी अंडरगोस ऑक्सीडेशन आपको बनता है। अच्छा ये COH है, ये CHOH taken 4 times, ये भी COH। अच्छा when gluconic acid, when cyclic acid। अच्छा these are the reagents, still some more reagents are there। okay this is alkane alkene। अच्छा still some reagents are there। so what are the reagents are there, like potassium dichromate है, potassium permanganate है, like MnO2 है, lithium aluminum hydride है, sodium borohydride है, जिंक फ्लेमेशन रिडक्शन है, ब्लूफिश रिडक्शन है। अच्छा some I think 10 to 20 minutes में खत्म होता है। अच्छा we'll make one more video about that। okay you can check it this too।